My dear students, welcome to Mathological. Welcome to the second session of the triangles. Another very important session. In this session, we'll be learning a concept of condition for formation of triangle given the side lengths. कि side lengths पे क्या क्या condition हो सकता है for formation of triangle. Additionally, we'll be also learning some concepts of problem solving. Start करते हैं. So relationship between side lengths of a triangle. Or that is also condition for formation of a triangle. Condition for formation of a triangle. So if there is a triangle ABC, side length opposite to angle A, that is small a, opposite to angle B is small b, and opposite to angle C is small c. So side lengths are A, B and C. ठीक है. So any two side lengths का sum, let us say A plus B का sum should be greater than the third side length. That is the first condition. That sum of two side lengths should be greater than the third side length. Similarly, B plus C should be greater than A, and C plus A should be greater than B. Okay. So sum of any two side lengths is always greater than third side length. Sum of any two sides is greater than the third side. Now if we take, let us say B को हम ले जाते हैं right hand side पे, तो this can also be written as A is greater than C minus B. और सिमिलरली अगर हम C को लेके जाए राइट हैंड साइड पे सेकंड में से, सेकंड इक्वालिटी में से, सो दैट कैन बी रिटन एज C इज ग्रेटर देन या B इज ग्रेटर देन A माइनस C, एंड सिमिलरली C कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन B माइनस A. ठीक है. दीज कंडीशंस आर ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. एंड दिस इज सेइंग दैट साइड लेंथ A शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ साइड लेंथ C एंड B. साइड लेंथ A शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ साइड लेंथ C एंड B, बिकॉज अगर C और B में से B लार्जर वैल्यू है और C छोटा वैल्यू, तब तो नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव से तो डेफिनेटली साइड लेंथ बड़ा ही होगा. सो आवर कंसर्न शुड बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन C एंड B. तो इसको समराइज करके लिखते हैं क्विकली दोनों बातों को कि इफ वी हैव अ साइड लेंथ C, तो दिस शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स if this is a side of triangle, and this should be greater than the difference of the two side lengths B and A. ठीक है. So difference of two sides should be less than third side, and third side should be less than sum of two sides. So this is what we have to remember as such. Difference of two sides is less than third side, and third side should be less than sum of the sides. Okay. So for example, let us say we have three values 3, 4 and 5, and we need to identify whether this can form a triangle or not, whether these can be side lengths of a triangle or not. Okay. So for that, take any two values. Take any two values. Let us say we have taken 3 and 4. 3 and 4. ठीक है. So A is equal to 3, B is equal to 4. So now the third side C should be between difference of A and B, यानी कि 4 minus 3 in mod, and that is less than 4 plus 3. Or basically 4 minus 3 is 1, so 1 less than C and C is less than 7. So C should be between 1 and 7 and definitely not equal to 1 or not equal to 7. ठीक है. C cannot be 1 and C cannot be 7. Any value between 1 and 7 will be fine. So C can take values equal to 2, 3, 4, 5 and 6. And since in this condition we have been given C as equal to 5, so yes, this can form a triangle. Can form a triangle. Not just can, it forms a triangle, but this is a right angle triangle in this case. ठीक है. चलो, क्या ये बात समझ में आती है? ओके. एक और एग्जांपल लेते हैं. Let us say lengths are side 7, 9 and 17.
7, 9 and 17. Now the question is, can they form a triangle or not? Take any two values. Let us say we've taken 7 and 9. ठीक है, 7 and 9. So the difference of 7 and 9 is 2. The sum is 7 plus 9, 16. Difference is 2. Sum is 16. So the third side length between should be between 2 and 16. But 17 is not between 2 and 16. So this cannot form a triangle. This cannot form a triangle. ठीक है, अब 7 और 9 के बजाय कोई और पेयर लिया होता, जस्ट इन केस तुमने 9 और 17 का पेयर लिया होता. So if you would have taken the pair of 9 and 17, so difference would have been 8. Sum would have been 9 plus 17, that is 26. So the third side length should be between 8 and 26, but third side length है तो 7, 8 से 26 के बीच में नहीं है. That is why यहां से भी हमारा आंसर आएगा नो. तो कोई भी टू साइड लेंथ को ले लो और थर्ड को चेक कर लोगे, थर्ड को चेक कर लोगे. क्लियर है? ओके. नाउ इन सम केसेस there might be a question where two side lengths are given, side lengths A and B are given, ठीक है, and let us say third length is x centimeter. So question might be asking, find number of values of x, number of values of x such that A, B and x form a triangle. And definitely these values will be integers. तभी मतलब है, अदरवाइज तो इनफाइनिटली मेनी ट्रायंगल्स बन जाएंगे, इनफाइनिटली मेनी वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, सो दीज वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर्स. A, B and x all should be integers. Okay. So if we have only been given two values A and B, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं. So B minus A, let us say A is less than B. So difference will be B minus A, and that will be less than x, and sum will be B plus A. So x should be any value between B minus A and B plus A. Any value between B minus A and B plus A. ठीक है, क्लियर है? So it could be B minus A plus 1, B minus A plus 2 and so on और B plus A से छोटा होना है, यानी कि B plus A minus 1 तक. It can take all the values. Values put कर दें, let us say A is 5, B is 7 and x, 5, 7 and x. So how many values are possible? Pause the video and try to solve it. So difference of 5 and 7, 7 minus 5 should be less than x and x should be less than 7 plus 5. तो यानी कि between 2 and 12 and definitely not 2, not 12. ठीक है, तो 2 and 12 will be excluded. तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ सकता है? x can be equal to 3 or it can be equal to 4 or 5 or 6 till 11. तो नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगा हमारा 11 minus 3 plus 1. लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू को मैं एक्सक्लूड नहीं करना, तो या तो 11 minus 2 कर दो या 11 minus 3 plus 1 कर दो, विच एवर वे यू प्रेफर. दिस विल बी 8 plus 1, 9 values in total. 9 values in total will be the answer. Okay, and since we are subtracting by 5 and adding by 5, the actual answer is 2 times of the smaller side. Smaller side कितना है? 5 है, तो 2 times of 5 minus 1. That is our answer. Or in general here 2a minus 1, if a is the smaller side, values will be there. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, 2a minus 1 will be the number of values. अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं. So first question, which of the following groups cannot be the side lengths of a triangle? Which of the following groups cannot be the side lengths of a triangle? In each case, we have to satisfy the triangle inequality. So first example लेते हैं 3, 5 and 7. So 3 और 5 को ले लो. The difference is 2. The sum is 8. So third side length should be between 2 and 8 and 7 is between 2 and 8. So yes, this will be forming a triangle. तो ये आंसर तो नहीं होगा, because this is forming a triangle. Second case, let us take 10 and 15. So 10 and 15 का difference is 5. Sum is 25. So the third side length should be between 5 and 25, and yes, 22 is between 5 and 25. So this will be forming a triangle. Triangle form करेगा, that is why आंसर नहीं होगा, because आंसर पूछ रहा है cannot be. Okay. Third case 8, 9 and 18. तो 8 और 9 का difference is 1. Sum is 17, but the third length given is greater than 17. ठीक है, 17 is less than 18, तो definitely this will not be forming a triangle and hence this will be the answer. This will not be forming a triangle, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा. Is that clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next case 7, 12 and 12. 7, 12 and 12. Take any two values. ठीक है, let us say हमने 12 और 12 को ले लिया.
कोई भी दो का पेयर ले लो, तो 12 और 12 का डिफरेंस आ रहा है 0, तो थर्ड साइड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0, और 12 और 12 का सम आ रहा है 24, तो बिटवीन 0 एंड 24, एंड यस 7 इज बिटवीन 0 एंड 24, दिस विल बी फॉर्मिंग अ ट्रायंगल. लास्ट केस 19, 32 एंड 16, 19 और 32 को ले लिया हमने, सो 19 और 32 का डिफरेंस इज 13, 13 शुड बी लेस देन थर्ड साइड लेंथ, और 19 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 51. तो थर्ड साइड लेंथ शुड बी बिटवीन 13 एंड 51, विच इज द केस. 16 हमारा 13 से 51 के बीच में ही है, तो दिस विल आल्सो बी फॉर्मिंग अ ट्रायंगल. सो ओनली थर्ड केस इज देयर व्हेन a triangle is not formed, and hence that will be the answer. 8, 9 and 18 will be our answer. Okay, clear. Next question. If two sides of a triangle are 12 centimeter and 16 centimeter, then how many triangles are possible given the length of the third side is an integer? तो third side एक integer है, 12 और 16 हमें two sides की values given है. Apply triangle inequality. तो difference of sides 16 minus 12 should be less than the third side, and third side should be less than sum of the side lengths 16 plus 12. So 4 is less than third side length, let us say that is C, is less than 28. So C can be between, it can be between 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5, 6 till 27. Number of values will be 27 minus 5 plus 1. So that is 22 plus 1, 23 values. 23 values will be the answer, option C. और स्ट्रेट अवे हम कर सकते थे इसको, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड हमारा कौन सा दिख रहा है आउट ऑफ द गिवन साइड्स. आउट ऑफ द गिवन साइड स्मॉलर साइड कौन सा है, 12 है, तो आंसर विल बी 2 into 12 minus 1, 23. Okay. Next case, if two sides of a triangle are 105 centimeter and 56 centimeter, then how many triangles are possible given the length of the third side is an integer? तो स्मॉलर साइड हमारा है 56, अगेन आंसर विल बी 2 into 56 minus 1, यानी कि 111 वैल्यूज, 112 minus 1, 111 वैल्यूज. ओके, और 105 minus 56 से लेकर 105 plus 56 के बीच में होगा थर्ड साइड. If third side is x, x should be between these two values. 105 minus 56 कितना है? This is 49. ठीक है, this is 49. And 105 plus 56 is 161. तो x can take values from 50, 51 till 160. The number of values will be 160 minus 50 plus 1, which is 111. Okay. Next question. If A and B are the lengths of two sides of a triangle such that the product AB is equal to 36, where A and B are integers, then how many such triangles are possible if third side length C is also an integer? So two side lengths are given, ठीक है, A and B, जिनका product given है 36 and both are integers. So A and B both are integers, and third side length C is also an integer. So how many such triangles are possible? If A into B is equal to 36 and A and B are integers, क्या क्या values possible हो सकते हैं? Obviously side length है तो positive ही होगा. So 1 into 36 is one possible case, or it could be 2 into 18, or 3 into 12, 4 into 9, or both are equal, 6 into 6. These are the 5 cases. 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6. 5 cases है. First case है अगर A is 1, B is 36, तो third side length C should be between 36 minus 1, which is 35, and 36 plus 1, which is 37. So C should be between 35 and 37. So the only possible value is C should be 36. C should be 36. Okay, clear? 36 is the only possible value in this range. Second case, A is 2, B is 18. So 2 or 18 का difference is 16. Sum is 20. So C should be between 16 and 20. So 17, 18, 19 are the possible solutions. Third case, difference is 9, sum is 15, so C should be between 9 and 15. तो values क्या आ जाएगा? 10, 11, 12, 13, 14. Next case, difference of is 5 and sum is 13, so C should be between 5 and 13. So values will be 6, 7, 8 till 12. And last case, 6 into 6, so difference is 0 and sum is 12, so C should be between 0 and 12, so all values from 1 to 11. Total number of values कितना हो जाएगा? In the first case the values is 1, second case में 3, third case में 5, fourth case में 7 and fifth case में 11. अच्छा, एक चीज है जो गलती, पैटर्न नहीं देखना है यहाँ पे,
ठीक है, कि 1357 आ गया तो फिर लेंथ 9 होगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, 1 + 3 डिपेंड करता है फैक्टर्स हमारे कहाँ पे आ रहे हैं। कोइंसिडेंटली इस तरह से आ रहे थे, स्टार्ट के फैक्टर 1 2 3 4 सारे ही आ रहे थे, दैट इज वाई 1357 हमारा कॉम्बो बन गया, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो 11 + 7 18, 18 + 9 27 such values will be there. So 27 such triangles are possible. 27 such triangles are possible. Okay, brilliant question. Okay, clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many isosceles triangles with integer sides are possible such that sum of two of the sides is 16 centimeter? How many isosceles triangles with integer sides are possible such that sum of two of the sides is 16 centimeter? Fine. So two of the sides का sum given है 16. Triangle is isosceles triangle, implies two sides are equal. Two sides are equal. ठीक है, so it might be possible that sum of equal sides is equal to 16 centimeter. So third side will be the different side. That could be possibility. This could be first case, or second case could be कि 16 is sum of unequal sides. ठीक है, 16 is sum of unequal sides, यानी कि one of these sides will be having a repeat, क्योंकि एक साइड में से ऐसा होगा जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका कि सेकंड साइड लेंथ भी होगा, isn't it so? और अनइक्वल साइड का सम में गिवन है। क्लियर है, दो केसेस बनेंगे। सो फर्स्ट केस इज when two side lengths are 8 and 8 and the third side length is equal to x. Okay, or second case is when let us say one side length is x, second will be 16 minus x because sum has 16 और x is the side length जो repeat हो रहा है, x and x these are equal. ठीक है, तो these are the two cases. ओके, फर्स्ट केस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे? x पे अप्लाई करेंगे। सो 8 और 8 का डिफरेंस कितना है? 0 है। सम इज 16, सो x शुड बी बिटवीन 0 एंड 16, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 16, तो x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 to 15। 15 वैल्यूज आर पॉसिबल। सेकेंड केस में क्या होगा? अप्लाई द कंडीशन इन सेकेंड केस एज वेल। x और x का डिफरेंस इज 0, 16 minus x should be between 0 and x plus x is 2x, sum is 2x, so between 0 and 2x. So from first two terms x will be less than 16 and from second two terms 16 minus x is less than 2x, so 3x is greater than 16, so x should be greater than 16 by 3 और 16 by 3 वैल्यू कितना आता है? दिस इज 5.33, तो x should be greater than 5.33 and less than 16. x should be greater than 5.33 and less than 16. So x can take values equal to 6, 7, 8 till 15. From 6 to 15 x can take values. Number of values कितना हो जाएगा? 15 minus 6 plus 1, 10 values. तो 15 values in the first case, 10 values in the second case. But question खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, because there is one case that is common in both these cases. एक केस ऐसा है which is common in both these cases, which is that case when x is equal to 8, when x is equal to 8. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 8, 8 and 8. ओके, सो when x is equal to 8 that case is common, तो उस केस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 15 plus 10 minus 1, 15 plus 10 minus 1, that is 24. 24 such cases are, 24 such isosceles triangles are possible. ओके, क्लियर है? ठीक है, यही काम तुम फटाफट से मैनुअली भी कर सकते थे कि सम ऑफ टू साइड्स इज 16। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है? 8 and 8 इक्वल साइड्स। तो थर्ड केस क्या होता है? थर्ड साइड क्या हो सकता है? एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 15, तो 1 2 3 till 15, 15 वैल्यूज आर देयर। एंड देन सेकंड केस क्या होगा? 1 कुड बी 9, अदर 7, तो 9 और 7 के केस में क्या है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, सम आ रहा है 16 का। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। द पॉइंट इज अगर 9 और 7 वाला केस है तो थर्ड साइड कुड बी 7 और 9,
2 cases, और 10 and 6, तो थर्ड साइड कुड बी 6 और 10, ये भी चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं है। तो 10 6 6 पॉसिबल है, 10 6 10 दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, 2 केसेस, ठीक है, 2 केसेस। फोर्थ 11 and 5, नाउ थर्ड साइड कुड बी 5 और 11, बट 11 5 5 पॉसिबल है क्या? 5 + 5 10 आ रहा है विच इज लेस देन 11, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। 11 5 11 इज डेफिनेटली पॉसिबल, तो ओनली वन केस इन दिस केस। फिफ्थ 12 and 4, अगेन 4 और 12, बट बाय द सेम लॉजिक 12 4 4 पॉसिबल नहीं होगा, 12 4 12 पॉसिबल है, तो एक केस यहां से ही मिलेगा। सिक्स्थ 13 and 3, तो यहां से भी हमें सिर्फ 13 वाला केस मिलेगा। 14 and 2, 14 वाला केस मिलेगा। 15 and 1, 15 वाला केस मिलेगा, सो ओनली वन केस हियर फ्रॉम हियर एज वेल। टोटल कितने केसेस बन गए? 15 + 4 19 + 5 24, 24 values are there. Okay, next question, find the number of triangles with integer side lengths such that all side lengths are less than 6. Number of triangles with integer side lengths such that all side lengths are less than 6. So all side lengths less than 6 implies that the largest side length should also be less than 6. अगर वो less than 6 है तो बाकी सारे भी less than 6 होंगे, ठीक है। हमेशा जब भी हमें कैलकुलेशन करना है तो हमेशा कैलकुलेशन का एक ऑर्डर होना चाहिए, देयर शुड बी रीजनिंग, देयर शुड बी लॉजिक व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल आर्बिट्ररी नहीं करना है हमको कि 6 से कम होना चाहिए, तो एक तो हो गया हमारा 3 4 5, एक हो गया हमारा 2 5 समथिंग, ठीक है, 2 5 5, इस तरह से कैलकुलेट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा कैलकुलेशन एक परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, तभी कभी डबल केसेस काउंट नहीं होंगे, काउंट होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। सो देयर शुड बी ऑर्डर, इंटीजर साइड लेंथ, द लार्जेस्ट साइड लेंथ शुड बी लेस देन 6, दैट इज अवर कंडीशन, ठीक है। और अगर यही हमारा कंडीशन है तो हमें इसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड लेंथ को एज्यूम करते हैं, तो लार्जेस्ट साइड लेंथ ठीक है, उसको एज्यूम करते हैं। लेट अस से फर्स्ट केसेस दैट लार्जेस्ट साइड लेंथ c मान लेते हैं, दैट c इज इक्वल टू 5, लार्जेस्ट साइड लेंथ इज इक्वल टू 5। तो अगर लार्जेस्ट साइड लेंथ हमारा इक्वल टू 5, बिकॉज लेस देन 6 होना है तो 6 नहीं हो सकता है, दैट कैन बी मैक्सिमम 5। तो अगर लार्जेस्ट साइड लेंथ हमारा 5 है, बाकी साइड भी 5 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 साइड लेंथ्स कैन बी 5 and 5, ठीक है। एक को हमने 5 ले लिया, अब सेकंड को 5 लेके देखो नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं। सेकंड को 5 लिया हमने, थर्ड वाला 5 भी हो सकता है, और सेकंड 5 थर्ड 4 भी हो सकता है, और सेकंड 5 थर्ड 3 भी हो सकता है, टिल सेकंड 5 हो और थर्ड वाला 1 हो, ये भी चलेगा। 5 5 1 इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, परफेक्टली ट्राइंगल, ठीक है। सो 5 केसेस मिल गए हमको। सिमिलरली अब लो सेकंड साइड लेंथ को 4 ले लो, तो सेकंड साइड लेंथ इज 4, थर्ड कैन बी 4 एज वेल, और थर्ड कैन बी 3, और थर्ड कैन बी 2, बट क्या 1 हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि वन साइड लेंथ इज 5, 1 is 4, 1 is 1? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 1 is 5, 1 is 4, तो डिफरेंस हमारा कितना का आ रहा है? 1 का आ रहा है, तो थर्ड साइड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 3 केसेस, ओनली 3 केसेस when the second side length is 4, थर्ड केस 3, 3, अब 3, 2 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज 3 + 2 is 5, नॉट पॉसिबल, तो ओनली 1 केस फ्रॉम हियर। तो नंबर ऑफ केसेस हो गया साइड लेंथ 5 के लिए, 5 + 3 + 1, 9 केसेस, ओके। नाउ लेट अस टेक c is equal to 4. So if c is equal to 4, तो second side length can also be equal to 4. 4 and 4 is possible, 4 and 3 is possible, 4 and 2 is possible, 4 and 1 is possible. बेसिकली जब हमारा 2 साइड लेंथ इक्वल होगा तो थर्ड साइड लेंथ कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1, मिनिमम 1 तक भी जाएगा, ठीक है। सो 4 केसेस आर पॉसिबल हियर। अब सेकंड साइड लेंथ को 3 ले लो, तो 3, 3, 3, 2, 3, 1 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सम हमारा 4 हो जा रहा है। रुक जाओ यहाँ पे, तो 4 केसेस फॉर साइड लेंथ, सेकंड साइड लेंथ 4, 2 केसेस फॉर सेकंड साइड लेंथ इक्वल टू 3। अब सेकंड साइड लेंथ को 2 ले लो, क्या पॉसिबल है? 2, 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली दीज 6 केसेस विल बी देयर फॉर c इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड सिनेरियो फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो व्हेन साइड लेंथ c, लार्जेस्ट साइड लेंथ इज इक्वल टू 3, so if largest side length is 3, all other side lengths can also be equal to 3, so 3, 3 is possible, 3, 2 is possible, 3, 1 is possible, 2,
2 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट क्या 2, 1 पॉसिबल होगा? इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज 2 + 1 = 3. तो नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए हमारे? 3 और 1. 1 वाला साइड लेंथ का तो पॉसिबल ही नहीं बिकॉज 1, 1 भी पॉसिबल नहीं होगा. सो ओनली 4 केसेस if side length, maximum side length is equal to 3. Fourth case, when C is equal to 2, maximum side length is equal to 2. The remaining 2 can also be equal to 2 or 2, 1. ठीक है, क्या 1, 1 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 + 1 हो रहा है 2. तो ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल इन दिस केस. ओके, लास्ट केस व्हेन लार्जेस्ट साइड लेंथ इज इक्वल टू 1. अब अगर लार्जेस्ट इक्वल टू 1 है, स्मॉलेस्ट भी 1 से जुड़ा तो हो नहीं सकता, तो ओनली 1 केस इज पॉसिबल, 1, 1 वाला. ठीक है, टोटल केसेस कितने बन गए हमारे? 9 + 6 + 4 + 2 + 1. एंड देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा. तो 9 + 6 + 4 + 2 + 1, दिस इज 15 + 7, 22 such triangles. 22 such triangles will be there. Okay, 22 will be our answer. Clear है? Next question. If the perimeter of a triangle is 20 and all the 3 sides are integers, then how many such different triangles are possible? If perimeter of a triangle is given as 20 and all the 3 sides are integers, then how many such different triangles are possible? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला भी करेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को भी मैनुअली करते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे. सो पेरीमीटर इज गिवन एज 20. ओके, पेरीमीटर इज 20. तो या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करो, स्मॉलेस्ट साइड लेंथ से स्टार्ट करो, या लार्जेस्ट साइड लेंथ से स्टार्ट करो, व्हिचएवर वे यू प्रेफर. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड लेंथ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 1. ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 1. तो इफ स्मॉलेस्ट साइड, लेट अस से ए है स्मॉलेस्ट साइड हमारा, और स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 1. सो इफ स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 1, व्हाट कैन बी द अदर वैल्यूज ऑफ साइड लेंथ? बचा है 19, 1 तो हमने रिमूव कर दिया है, बचा है 20 - 1, 19 बचा है. 19 बचा है, तो अब 19 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में. सो सबसे पहले दोनों साइड लेंथ को इक्वल रखो, इक्वल के आसपास रखो बिकॉज इंटीजर है. तो 10 और 9 रख लिया हमने, 10 और 9. बट इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? ट्रायंगल फ्रॉम 1, 10 और 9 नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 + 9 = 10. दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. सो देयर इज नो अदर कॉम्बिनेशन बिकॉज 10 और 9. अब डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा करोगे डज नॉट मेक सेंस बिकॉज 9 और 9 बोल रहा हूं, 11 और 8 पे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा बिकॉज डिफरेंस हमारा आ रहा है 3 का, जबकि 3 से स्मॉलर वैल्यू है हमने जो स्टार्ट किया जहां से. सो नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, नो ट्रायंगल इज पॉसिबल. ठीक है, फॉर्मूले से हम कर सकते हैं स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बट पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं क्योंकि ये काम हमें बार बार कई जगह करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड पॉसिबल केस इज व्हेन a = 2, द स्मॉलेस्ट साइड लेंथ इज इक्वल टू 2. एंड इफ दैट इज द केस, रिमेनिंग कितना बचा है? 18. अब हमें 18 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है. दोस 2 पार्ट्स कैन बी 9 and 9 और दे कैन बी 10 and 8. बट क्या 10 and 8 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है, तो साइड लेंथ 2 नहीं हो सकता. सो ओनली 1 केस इज पॉसिबल. थर्ड, व्हेन a = 3. ठीक है, व्हेन a = 3, डिफरेंस, अब हमारा डिफरेंस के पहले वैल्यूज बचा है, बचे हुए साइड लेंथ का 17. इक्वल का सिनेरियो क्या बनेगा? इक्वल तो नहीं आएगा. 9 and 8 कैन बी ए केस, ये केस बन सकता है. डिफरेंस हमारा 1 का आ रहा है, अलाउड है बिकॉज 3 हमें गिवन है, 3 गिवन है, डिफरेंस यहाँ पे 1 का आ रहा है तो अलाउड है. 9 and 8 के बाद में नेक्स्ट बनेगा तुम्हारा 10 and 7, बट हमने लिया है 3 और यहाँ पे डिफरेंस ही आ रहा है 3 का, तो दैट इज नॉट अलाउड, यानी कि ओनली 1 ट्रायंगल इज पॉसिबल. देन a = 4. 16 is the sum for the remaining 2 side lengths. Now 8 and 8 could be a possible case. ठीक है, यहां पर डिफरेंस 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 अपना है साइड, तो ट्रायंगल बनेगा. नेक्स्ट विल बी 9 and 7. अभी भी डिफरेंस 2 का है, ट्रायंगल बनेगा. नेक्स्ट विल बी 10 and 6. डिफरेंस आ गया है 4 का, जबकि साइड लेंथ भी हमारा 4 है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल. a = 5. सम ऑफ अदर 2 साइड लेंथ्स इज नॉट 15. 15 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो 7 and 8, 8 and 7. ठीक है, 8 and 7. सो 8 and 7 आ गया, डिफरेंस 1 का है, चलेगा. 9 and 6, डिफरेंस 3 का है, चलेगा. 10 and 5, डिफरेंस 5 का है, नहीं चलेगा बिकॉज थर्ड साइड लेंथ भी 5 है हमारा, तो 2 केसेस आर पॉसिबल. ठीक है, a = 6. बचा है 14. 14 इज रिमेनिंग. 14 कैन बी रिटन 7 and 7, तो दिस इज पॉसिबल. नेक्स्ट केस हो सकता है 6 and 8 का.
डिफरेंस 2 का है, चलेगा। नेक्स्ट हो सकता है 5 एंड 9 का, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? ये बताओ, क्या ये चलेगा? थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड सोचो कि क्या ये चलेगा? इज दिस अलाउड? शुड बी दिस बी अलाउड? शुड दिस बी अलाउड? देखो हुआ क्या है, हमने स्मॉलेस्ट साइड लेंथ को एज्यूम किया था और स्मॉलेस्ट साइड लेंथ हमारा 6 है। तो इफ 6 इज द स्मॉलेस्ट साइड लेंथ, तो क्या 5 वाला केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इस पर तो रुक ही जाना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ओनली 2 केसेस आर देयर। और अब इसके बाद में a इज इक्वल टू 7 एज्यूम करोगे, स्मॉलेस्ट साइड 7 एज्यूम करोगे, तो बाकी साइड्स भी तुम्हारा 7 तो मिनिमम होना चाहिए ना, बट 20 से ऊपर पेरीमीटर निकल जाएगा, तो यहां पे तो 0 केसेस मिलेंगे। सो ओनली दीज केसेस आर पॉसिबल, ओनली दीज केसेस आर पॉसिबल। केसेस क्या बने हमारे? टोटल 8 ट्रायंगल्स बने हैं, 8 ट्रायंगल्स। क्या क्लियर है? ऑप्शन डी इज विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। इज दिस लॉजिक क्लियर? क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच अ क्वेश्चन। अब फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर दिस। इफ पेरीमीटर इज गिवन, let us say perimeter is P and all side lengths are integers, lengths of triangle are integers, ठीक है। तो number of triangles possible will be depending on 2 cases. First case is when perimeter is odd, second case is when perimeter is even. So if perimeter is even, the number of triangles, if that is equal to n gives us number of triangles possible, ठीक है। So n will be equal to, if perimeter is even, तो p square upon 48 inside this bracket, ठीक है। If p is odd, the number of triangles n will be equal to p plus 3 whole square divided by 48 inside this bracket. Now before we do a calculation, सबसे पहले समझते हैं कि what is this bracket, what is this bracket implying? So this bracket is nearest integer function, nearest integer function. So for example, the value inside the bracket is 78 by 5. Okay, value inside the bracket is 78 by 5. तो 78 by 5 कितना है? This is basically 15 and 3 by 5. 15 and 3 by 5. तो this is greater than 15.5 because हमें नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। तो अगर लेट अस से हमारी वैल्यूज है 2 and 3 और हमारा जो नंबर है दैट इज 2.51, तो क्लोजर इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा क्लोजर इंटीजर। और अगर नंबर है इंस्टेंट 2.31, तो क्लोजर इंटीजर हमारा होगा 2, तो नियरेस्ट इंटीजर होगा 2। तो इफ नंबर इज 2.51 इनसाइड द ब्रैकेट, तो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले केस में 3 विल बी द आंसर। इफ नंबर इज 2.31, 2 विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। अगर जस्ट इन केस नंबर है 2.5, तब नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर मार्क करना है 2, ठीक है। तो यहां पे सिंस दिस इज ग्रेटर देन 15.5, द आंसर विल बी 16, द नंबर विल बी 16 फॉर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंस इन दिस केस पेरीमीटर इज 20, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू एन विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 से ऊपर 5 बचेगा, नीचे बचेगा 12, अगेन 4 से सिंप्लीफाई होगा, ऊपर बचेगा 5, 25 by 3। दिस इज बेसिकली 8.33, 8.33 आ रहा है। So this is nearer to 8, answer will be 8, 8 will be the answer, option D will be the answer, clear है? 8 will be our answer, okay, ठीक है। अब यहां पे एक और बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखो गिवन हमें क्या है, इफ पेरीमीटर इज गिवन एज P and perimeter is odd, number of triangles formed are P plus 3 whole square
divide by 48, nearest integer function, and if p is even, number of triangles formed, p square divide by 48, nearest integer function. Isn't it so? So if p is even, basically perimeter is then a multiple of 2, 2a. और अगर odd है बट p प्लस c को रिप्लेस कर रहे हो यहां पे, तो इफ लेट अस से perimeter is 2b plus minus 3 और लेट अस से 2a minus 3, पुट करो फॉर्मूले में. सो अगर फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं p is equal to 2a, so n will be equal to 4a square by 48 और a square by 12 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन. सेकंड में पुट करोगे p is equal to 2a minus 3, so n will be equal to 2a minus 3 plus 3 यानी 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a square by 48 अगेन. सो दिस विल आल्सो बी a square by 12. वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, बट फिर भी लॉजिक समझोगे इस तरह की चीजों का कि जब भी हमें गिवन है यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इवन पेरीमीटर के लिए वी हैव बीन गिवन फॉर्मूला p स्क्वायर बाय 48, ऑड पेरीमीटर के लिए वी हैव बीन गिवन द फॉर्मूला p प्लस 3 स्क्वायर बाय 48. सो अगर हमारा p की वैल्यू 2a है इवन के केस में, ऑड के केस में 2a माइनस 3 है, तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो सेम ही आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो सेम ही आ रहा है. तो इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इफ पेरीमीटर इज लेट अस से 7 है और इफ पेरीमीटर इज 10, तो दोनों ही केसेस में वी विल बी गेटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू सेम. नंबर ऑफ ट्रायंगल सेम हो गए. Also, in case of odd perimeter, number of triangles for almost similar value of even value, number of triangles हमें ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन का, ये हमें किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, किसी क्वेश्चन यानी कि जो अभी हम ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाले केसेस करेंगे. बट क्या बात समझ पा रहे हो? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? तो कनेक्शंस भी हमें स्टैब्लिश करने आने चाहिए, कनेक्शंस भी समझ में आने चाहिए, लॉजिक भी समझ में आना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन. ओके, सो दैट्स द लॉजिक. चलो क्वेश्चन करते हैं. So, if the perimeter of a triangle is 21 and all the three sides are integers, then how many such different triangles are possible? Perimeter is given as odd value. Purely formula apply करना है बस, और कुछ भी नहीं करना. तो number of triangles n will be equal to perimeter is odd, तो p plus 3 square and 21 plus 3 square divided by 48. So this will be 24 into 24 divided by 48. So 12 बचेगा हमारा आंसर. 12 triangles are possible. Answer will be 12 triangles. Okay, clear है? Next question करते हैं. If the perimeter of a triangle is 24 and all the three side lengths are even integers, then how many such triangles are possible? Now there is a catch in this question. Read the question carefully. The question is saying perimeter is 24 and all the three side lengths are even integers. So side lengths are not just integers but they are even integers. So for example 24 है तो side length हमारी एक भी side length odd नहीं होना चाहिए, which implies कि 7, 9 and 8 will not be the case that we desire. हमें क्या चाहिए? हमें cases चाहिए like 6, 8 and 10. Integer, all side lengths should be integer, and if all side lengths should be integer and even as well, even भी चाहिए. तो even है तो even होने का मतलब क्या हुआ? Divisible by 2. Divisible by 2. So side lengths can be written as 2a, 2b and 2c, and they should be satisfying the triangle inequality. They should be satisfying the triangle inequality. और triangle inequality क्या है? कि difference of two sides यानी कि 2a minus 2b से 2a plus 2b के बीच में होना चाहिए 2c. 2 तो कॉमन आ रहा है सारे में, 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा mod of a minus b less than c less than a plus b. So can you observe that a, b and c are also following the triangle inequality? a, b और c भी हमारा triangle inequality को फॉलो कर रहे हैं. So a, b and c, if a, b and c are side lengths, they will form a triangle. They will form a triangle. Isn't it so? ठीक है, तो बस इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए. तो 2a plus 2b plus 2c, the perimeter, this is equal to 24.
दिस इज 24, 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 12. Now if we can find out number of triangles possible for perimeter 12, that will be same as for finding the number of triangles for perimeter 24 when all the three side lengths are even integers. Because हमने समझ लिया कि if 2a, 2b and 2c are following triangle inequality, then a, b and c will also be following triangle inequality. यानी a, b, c भी triangle form करेंगे अगर 2a, 2b, 2c triangle form करते हैं तो, because multiple ही तो है उसका, multiple ही तो है, isn't it so? If a, b and c are following triangle inequality, then 3a, 3b, 3c अगर वो भी होता तो 3a, 3b, 3c भी हमारे ट्रायंगल फॉर्म करते, 4a, 4b, 4c भी ट्रायंगल फॉर्म करते, 5a, 5b, 5c भी ट्रायंगल फॉर्म करते, या 1.5a, 1.5b, 1.5c भी ट्रायंगल फॉर्म करते. सो इफ a, b, c are sides of a triangle, then ka, kb, kc will also be sides of a triangle. k can be any value. Okay, so in this case हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और a plus b plus c is 12. अब बस 12 के लिए सॉल्यूशन निकाल लो. क्या आएगा? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 48 बिकॉज इवन नंबर है. तो 12 into 12, 144 by 48, that is equal to 3 triangles. Only 3 triangles are possible. Only 3 such triangles are possible. Okay. Clear है? What will be those triangles? If we take one side length as 4, the other side lengths can be 10 and 10. ठीक है, और 6, 8 and 10, और 8, 8 and 8. These are the 3 triangles. बट क्या लॉजिक समझ में आता है? क्योंकि वैल्यू अगर 24 था तो इजीली सॉल्व हो गया, बट 24 के बजाय इफ वैल्यू इज लार्जर, लेट अस से 30 वैल्यू होता तो हमें लॉजिक से ही सॉल्व करना पड़ता. इस लॉजिक लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is if the perimeter of a triangle is 36, then how many such triangles are possible if all the side lengths are even integers? And second case is exactly one side length is even. तो फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं पहले, फिर सेकंड केस के लिए सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस तो समझ में आ गया, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36, पेरीमीटर इवन है, ऑल साइड लेंथ्स कैन बी इवन. अगर पेरीमीटर ही ऑड होगा तो ऑल साइड लेंथ्स कैन नॉट बी इवन. ठीक है, तो पेरीमीटर तो इवन है, ऑल साइड लेंथ्स इवन, यानी कि 2a, 2b, 2c मान लो. तो 2a plus 2b plus 2c, this is equal to 36. So a plus b plus c, this will be equal to 18. So number of triangles will be equal to 18 into 18, 18 square divided by 48 because ultimately even ही है हमारा यहाँ पे पेरीमीटर. So 18 से 3 बचा, 8 बचा, 4 बचा, 9 बचा, 27 by 4 which is 6.75. So 7 will be the answer. 7 triangles will be formed with all side lengths even integers. Okay, clear है? सेकेंड केस करते हैं हम. Exactly one side length is even. Exactly one side length is even. यानी कि 2 side lengths are odd and 1 is even. तो सम तो हमारा इवन ही आएगा. ऑड प्लस ऑड इवन है, प्लस इवन करोगे तो इवन ही आएगा सम, बिकॉज पेरीमीटर हमारा इवन है. ठीक है, कितने केसेस बन सकते हैं? इफ देयर आर 3 साइड्स, ऑब्वियसली 3 साइड्स हैं एबीसी, सो इधर ऑल विल बी इवन, या फिर अगर एक को ऑड कर दिया, क्योंकि सम हमारा इवन है, सम इज इवन, तो अगर एक ऑड हुआ है दूसरे को भी ऑड करना पड़ेगा. 2 ऑड एंड 1 इवन. ओनली 2 पॉसिबल केसेस आर देयर. ओनली 2 पॉसिबल केसेस आर देयर. और फर्स्ट केस को तुमने कैलकुलेट कर दिया है. फर्स्ट केस को तुमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, और हमें निकालना है एग्जैक्टली वन साइड लेंथ इज इवन. तो सेकंड केस को कैलकुलेट करना है. टोटल को निकाल के इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट केस, टोटल माइनस फर्स्ट केस, तो सेकंड केस निकल आएगा. तो टोटल ट्रायंगल्स माइनस ऑल इवन साइड वाला ट्रायंगल्स विल गिव अस द आंसर. क्या ये लॉजिक क्लियर है? बिकॉज ओनली 2 पॉसिबल केसेस आर देयर, दैट इज वाई टोटल माइनस फर्स्ट केस से हमें सेकंड केस का आंसर मिल जाएगा. ओके, और टोटल हमारा कितना आएगा टोटल के केस में, क्योंकि 36 है, टोटल विल बी 36 स्क्वायर डिवाइड बाय 48 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन. 12 से 3 टाइम्स आएगा, या 4 टाइम्स आएगा, फिर 9 टाइम्स, तो अगेन 27
टोटल ट्रायंगल्स आ गया हमारे 27 और फर्स्ट केस में आए थे 7. 27 minus 7, answer will be 20 triangles are possible. 20 such triangles are possible. Is this logic clear? ठीक है. अब देखो समझ में तो आया है, बट यहाँ पे एक डाउट भी क्लियर करते चलते हैं कि सेकंड वाले केस में क्या हम सॉल्यूशन जैसे हमने फर्स्ट केस में लॉजिक से किया है, क्या वैसे कर सकते थे क्या? जैसे यहाँ पे लॉजिक हमने अप्लाई किया, 2a 2b 2c एज्यूम किया, क्या सेकंड केस में वैसे एज्यूम कर सकते थे? सोचते हैं एक बार. ठीक है, तो इफ एग्जैक्टली वन साइड लेंथ इज इवन, तो 2 आर ऑड, तो लेट्स एज्यूम 2a minus 1 2b minus 1, तो दो तो ऑड हो गई, एंड थर्ड साइड लेंथ को इवन मान लेते हैं, 2c हो गया. एंड सम in this case this is equal to 36. Okay, so this becomes 2a plus 2b plus 2c, that is equal to 36 plus 2 38. So a plus b plus c is equal to 19. a plus b plus c is equal to 19. अब यहां से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं अपना, बट होल्ड योर हॉर्सेस, सोचते हैं थोड़ा सा. देखो a plus b plus c हमारा आ रहा है 19 आ रहा है. कोई एक केस लेते हैं, कोई एक केस एज्यूम करते हैं. लेट अस से दैट केस इज 5 7 नहीं 5 6 एंड 8 का केस लेते हैं. 5 6 एंड 8. ओके, अब टू साइड्स को हमें ऑड बनाना है, एक को इवन बनाना है, यानी कि एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी दो को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है. इजंट इट? सो यही तो केस है. सो इफ वी डू दैट, तो 5 एंड 6 को ऑड बनाए, तो 5 इंटू 2 10 minus 1 9 11 6 इंटू 2 minus 1 और 16. तो 9 11 16 इज वन सच ट्रायंगल. वन सच ट्रायंगल. या फिर ये भी तो कर सकते थे हम कि 6 और 8 को ऑड बना लेते, 5 से इवन बनाते, तो 5 से बनता 5 इंटू 10, 6 से बनता 11 और 8 से बनता 15. तो 10 11 एंड 15, दिस इज अनदर पॉसिबल ट्रायंगल, अनदर पॉसिबिलिटी. सो द होल पॉइंट इज दैट वील बी गेटिंग, बिकॉज यहां पे हमारा ए बी और सी में से किसको ए मानते हो, किसको बी मानते हो, किसको सी मानते हो, से हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे. मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे फॉर द सेम सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए बी एंड सी. फॉर द सेम सेट ऑफ ए बी एंड सी वी विल बी गेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस. सेम सेट ऑफ ए बी सी विल बी गेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन which is a, which is b, which is c, which is a और b और c. क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि पीछे वाले केस में जो हमने एज्यूम किया था सारे के सारे इवन, तो कोई भी टेंशन नहीं था, वहां पे सारे इवन थे. ठीक है, सारे ऑड भी होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे पूरा सिमेट्री था. तो ए बी और सी किसको मान रहे हो, इस पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता, बट यहां पे डिपेंड करेगा. दैट इज वाई वी कैन नॉट कैलकुलेट इट दिस वे. इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है, सो a plus b plus c is equal to 19 will not give us same number of triangles as that when the perimeter is 36 and exactly one side length is even. तो both are different questions. That is why हमने ऐसे कैलकुलेट इसको नहीं किया और ऐसे नहीं करेंगे. We'll be doing total number of triangles minus all even sides वाला triangles. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, this should be clear. Okay, is this clear? Next question. If the perimeter of a triangle is 33, then how many such triangles are possible? Now the perimeter is odd. First case, all the side lengths are odd. All are odd, easy. सबको odd मान लोगे तो 2a minus 1, 2b minus 1, 2c minus 1. कोई भी केस टेंशन तो नहीं आना है कि abc में से कौन सा a होगा, कौन सा b होगा, कौन सा c होगा. तो यहां से तो सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू 33. सो 2a प्लस 2b प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू 36. सो a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 18. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म करने हैं. ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था. a प्लस b प्लस c 18 में क्या आया था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आए थे 7. 7 विल बी आवर आंसर. 7 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. अभी सॉल्व किया है तो n कम्स आउट बी इक्वल टू 7. तो 7 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. ओके, क्लियर है? यहां भी एक छोटी सी बात और है जो समझते हैं. देखो ए बी सी आर साइड लेंथ्स. जब हम a प्लस b प्लस c इक्वल टू 18 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो a b c are side lengths, and since they are side lengths, तो both all should be positive. पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू भी 1 होगा इनका. Isn't it so? तो अब ये ऑब्जर्व करो, हमने फर्स्ट केस में ऑड वैल्यूज हमने क्या मानी है, 2a minus 1. हम 2a minus 1 नहीं मान सकते थे, 2a plus 1 नहीं मान सकते थे, बिकॉज ये भी ऑड वैल्यू देगा हमें रिजल्ट में, और दिस विल ऑल्सो गिव अस ऑड वैल्यू एज अ रिजल्ट.
बट अगर 2a माइनस 1 वाला केस देखो, इफ यू पुट a इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 कैन ऑल्सो बी द पॉसिबल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इजंट इट सो? बट अगर 2a प्लस 1 वाला केस लोगे तो मिनिमम वैल्यू भी क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 पे विल बी गेटिंग 2a प्लस 1 3, तो साइड लेंथ इक्वल टू 1 वाला केस तो हमने मिस कर दिया, साइड लेंथ इक्वल टू 1 वाला केस मिस कर दिया हमने, जो कि हमें मिस नहीं करना है, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड, दैट शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। दैट इज वाई हमने 2a प्लस 1 वाला ऑड वैल्यू को 2a प्लस 1 नहीं माना है, 2a माइनस 1 माना है, सो दैट a इज इक्वल टू 1 वाला साइड लेंथ इक्वल टू 1 वाला केस भी हमारा इंक्लूड है, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 नहीं, 2a माइनस 1 इक्वल टू 1 वाला साइड लेंथ इक्वल टू 1 वाला केस भी हमारा इंक्लूड है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बिकॉज a हमारा a b c आर पॉजिटिव वैल्यूज, साइड लेंथ इंटीजर होगा, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू भी 1 लेगा, और अगर a 1 ले रहा है तो 2a माइनस 1 भी हमें 1 वैल्यू देना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 हमें देना चाहिए, 2a प्लस 1 के केस में मिनिमम वैल्यू 1 हमें नहीं देगा, दैट इज वाई हमने 2a माइनस 1, 2b माइनस 1, 2c माइनस 1 वैल्यूज एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए बात नहीं है, जो चीजें हम सीख रहे हैं दिस अप्लाइज टू होल ऑफ अरिथमेटिक, होल ऑफ मैथमेटिक्स, होल ऑफ अलजेब्रा, जहां जहां पे भी अप्लाई करना हो, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, छोटी छोटी बातें जिनको कि हमें ध्यान रखना है। सो सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, 7 ट्रायंगल्स हो गए, सेकंड केस एक्जैक्टली 1 लेंथ इज ऑड, अब ये तो अपने एंड पे कर लोगे, ठीक है, अब तो समझ ही गए, अब तक समझदार हो गए, तो कमेंट में मेंशन करना क्या आंसर आएगा, ओके, कमेंट में मेंशन करना कि आंसर क्या आएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the perimeter of a triangle is 45 and all the three sides are integers, then how many such isosceles and equilateral triangles are possible? How many such isosceles and equilateral triangles are possible? Okay. ठीक है, isosceles and equilateral triangles are possible, that is the question. कैसे करेंगे? एक तरीका है कि काउंटिंग कर लें, वन मेथड इज कि हम काउंटिंग कर लें सबका, ठीक है, वो लंबा मेथड होगा, लंबा मेथड होगा, बट पहले काउंटिंग एक बार कर लेते हैं मैनुअली, उसके बाद में अगेन एक इसके लिए मेथड समझेंगे। तो पेरीमीटर इज 45 एंड वी आर कैलकुलेटिंग आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट, इफ वी आर हैविंग अ पेरीमीटर लेट अस से 12, ओके, सो व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट साइड का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है लार्जेस्ट साइड का, लार्जेस्ट साइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, लार्जेस्ट साइड कैन बी 4 and 4 and 4, तो लार्जेस्ट साइड हमारा आ रहा है 4, और इट कुड बी 5, 3 and 4, लार्जेस्ट साइड इज कमिंग आउट टू बी 5, और इट कुड बी 6, हो सकता है क्या पॉसिबल, 6 से बन पाएगा ट्रायंगल, 6 3 3, इज इट पॉसिबल? बिकॉज देन फिर बचे हुए दो साइड्स का जो सम है दैट इज 6 ओनली, और एटलीस्ट वो 7 होना चाहिए था, एटलीस्ट दैट शुड हैव बीन 7, इजंट इट सो? बट यहां पे 6 ही बन रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। The whole point is कि largest side will always be less than perimeter by 2. Largest side will always be less than perimeter by 2. तो perimeter अगर 45 है तो 45 by 2 यानी 22.5 से largest side lesser होगा, largest side will be less than 22.5, तो maximum value भी क्या होगा, 22 होगा, maximum value of the largest side will be 22, तो start करते हैं largest side equal to 22 से, तो 22, 22 and 1, this could be the first triangle, isosceles triangle, 22 22 1, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, 21 21 and 1, 20 21 21 1 नहीं, 21 21 and 3 हो जाएगा, पेरीमीटर 45 है, 20 20 and 5, 19 19 and 7, 17 17 and 9, 15 15 and 11, now 13 13 and 19, 11 11 and 23, क्या है पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारे केसेस बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस बन गए, और क्या केसेस बनेंगे, और क्या केसेस बनेंगे? अभी बहुत सारे केसेस हमने मिस किए हैं, कौन से केसेस मिस किए हैं? व्हेन द साइड लेंथ वाज 21, लार्जेस्ट साइड लेंथ वाज 21, तो या तो 21 के साथ में बना लो, तो 21 21 3 हो गया, या फिर जो बचा हुआ है हमारा केस, ठीक है, बचा हुआ है जो केस, एक सेकेंड इसको दोबारा से फ्रेश लिखते हैं, एक सेकेंड फिर से एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज अभी स्पेस जो है उतना अच्छे से मैनेज नहीं है। So largest side length should be less than 22.5. So largest can be 22,
then others can be 22, 22 and 1. This is one possible case. और 21, 21 and 3. This is one possible case. बट अगर हमारा लार्जेस्ट साइड 21 है तो 21 एंड 21 से एक बन सकता है ट्रायंगल, वो तो बन ही सकता है एडिशनली, क्योंकि हमें बनाने आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि 21 के बजाय जो बाकी दो साइड्स हैं दोस शुड बी इक्वल, दोस कैन बी इक्वल, ये भी पॉसिबल है. तो 21 इज वन साइड, अदर टू साइड्स का सम इज 24, 12 एंड 12. ओके, देन 20, तो 20, 20 एंड 5, दिस इज वन केस. और 20 को तुमने एक ले लिया और बाकी बची हुई साइड का सम वो इक्विलैटरल हो, बट सम का आ रहा है हमारा 25 विच इज ऑड वैल्यू, ऑड वैल्यू. तो ये हमें इंटीजर साइड लेंथ इक्वल साइड लेंथ नहीं देगा. ये तो 12.5 12.5 होता तो चल जाता, बट वो तो हमारा केस नहीं बनेगा ना. सो दैट इज व्हाई यहां पे हमें वैल्यू नहीं मिलेगा. नेक्स्ट 19, 19 एंड 7. और बाय द सेम लॉजिक 19 वाले केस में कोई 21 ऑड था, यहां पे भी 19 ऑड है, तो बचा हुआ साइड लेंथ का जो सम है दैट विल बी इवन. तो यहां पे हमें डेफिनेटली एक और ट्रायंगल का केस मिलेगा. 19 और बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है हमारा 26 बचा है. सो 13 एंड 30. ओके, नेक्स्ट विल बी 17, 17 एंड 11. 18 वाला भी मिस हो गया. 18, 18 एंड 9. बट वहां पे कोई दूसरा केस नहीं मिलेगा. 17, 17, 11 में दूसरा केस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. 17 हो गया, बचा हुआ साइड लेंथ का सम है 28, तो 17, 14 एंड 14. नेक्स्ट विल बी 16, 16 एंड 13. और यहां पे एक ही केस मिलेगा बिकॉज इवन है फर्स्ट साइड लेंथ. फिर 15 वाला केस लो, 15, 15 एंड 15. सो नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने बन गए टोटल. अब इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला. 15 से छोटा लार्जेस्ट साइड लेंथ हो ही नहीं सकता. ओके, बिकॉज लार्जेस्ट साइड लेंथ हमारा लेस देन 22.5 होगा और ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पेरीमीटर बाई 3. ओके, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल. सो नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 such triangles are possible. But you can observe that this process was so hodgepodge. और गलती होने का कितना स्कोप था, गलती होने का भी कितना स्कोप था, तो इसका प्रॉपर मेथड समझते हैं. ओके, वी अंडरस्टूड दैट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वी कैन फाइंड आउट. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे 45 पेरीमीटर से, दैट विल बी 45 प्लस 3 बिकॉज 45 इज ऑड. 45 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज 48 होल स्क्वायर बाय 48, यानी कि 48 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल इन टोटल. In total. Now, if we subtract number of scalene triangles, if there is some way to know number of scalene triangles, और उसको subtract कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आंसर मिल जाएगा. और फॉर नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स रिप्लेस p विद p minus 6 इन ओरिजिनल फॉर्मूला. रिप्लेस p विद p minus 6 इन ओरिजिनल फॉर्मूला. तो ओरिजिनल फॉर्मूला में हमारा इवन और ऑड वाले दो केसेस थे. तो इन केस ऑफ इवन नाउ p स्क्वायर बाय 48 के बजाय दिस विल p minus 6 स्क्वायर बाय 48 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन. और इन केस ऑफ ऑड दिस विल बी p प्लस 3 minus 6, यानी कि दैट विल बी p minus 3 होल स्क्वायर बाय 48. We basically replaced p with p minus 6 in the original formula. Okay, तो नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स क्या आएगा, ऑड है क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर, तो 45 minus 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48 एंड दिस विल बी 42 into 42 by 48. 6 से यहाँ 7 बचेगा, नीचे बचेगा 8, फिर ये 8 से 4 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 21. 7 into 21 that is 147 divided by 4. 140 divided by 4 is 35, तो 36.75 आ रहा है. तो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस विल बी इक्वल टू 37. 37 आ जाएगा. 48 minus 37, द आंसर विल बी 11 triangles. 11 triangles, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. 48 minus 37, आंसर विल बी 11 triangles. क्या ये क्लियर है? ठीक है, 11 will be our answer. Next question. How many scalene triangles are formed if perimeter is 26 and all side lengths are integers? Perimeter is 26 and all side lengths are integers. तो क्या करोगे यहाँ पे स्ट्रेट अवे, p minus 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48. दिस विल बी आवर आंसर. और पेरीमीटर 26 है तो आंसर विल बी, क्योंकि नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स ही पता लगाने बस.
तो आंसर विल बी 20 स्क्वायर बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो 20 इंटू 20 बाई 48, बेसिकली दिस वैल्यू इज 400 बाई 48 का इंटीजर फंक्शन. पर सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 12, 3 बचा 5, 25 बाई 3. So comes out to be equal to 8 triangles. 8 triangles will be our answer. Okay, clear है? कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार काउंट भी कर लेते हैं. 80 ट्रायंगल्स है. सो काउंटिंग करें नहीं करें तुम अपने एंड पे कर लेना, ठीक है? अपने एंड पे एक बार काउंटिंग कर लेना, तो उससे भी तुम्हें चीजें और बेटर क्लियर होगा. बाकी फॉर्मूला तो यही है अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पिरामिड इज 25, तो क्या हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, नंबर ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल्स होंगे. अब ये तो अपने एंड पे कर ही सकते हो, सॉल्व कर लेना एंड आंसर कमेंट में मेंशन कर देना कि क्या आंसर आएगा. ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में. दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जितना भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट. एंड इफ यू लाइक द सेशन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, एंड देन we'll be learning to another property regarding condition regarding acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle after learning Pythagoras theorem. ठीक है, and Pythagorean triplets. So that's all for this session, and bye bye, take care and keep learning.